Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. वो पालक को देख के हमेशा मुंह बनाता है। कहने का मतलब है कि उसे पालक अच्छी नहीं लगती, अजीबोगरीब मुंह बनाने लगता है उसे देख के। इंग्लिश में हम कह सकते हैं He pulls a face every time he sees spinach. He makes a face every time he sees spinach. Pull a face और make a face, इन दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं ये बोलने के लिए कि वो मुंह बनाता है आड़े तिरछे। He pulls a face every time he sees spinach. इसका मतलब किसी की तरफ मुंह बनाना भी होता है, किसी का मजाक उड़ाना, उसको चिढ़ाना। वो मुझे चिढ़ा रहा है, कहने का मतलब है जब मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ मुंह बना रहा है आड़े तिरछे, मुझे चिढ़ा रहा है, हंस रहा है। He is pulling faces at me. He is pulling faces at me. Pulling faces at someone. This means what you're trying to say in Hindi. मुझे अकेले ही उसे सबक सिखाना पड़ेगा, मुझे अकेले ही। I will have to teach him a lesson single-handedly. Single-handedly. Of course मैं यहाँ पे alone का भी यूज़ कर सकता हूँ, but I want to teach you this word, single-handedly. If you do something single-handedly, it means you do it without anybody's help. You do it on your own. You do it by yourself. वो अकेला ही पूरी दुकान संभालता है. He handles the whole shop single-handedly. He handles the whole shop single-handedly. He handles the shop on his own or by himself or without taking anybody's help. वो इतना गुस्से में है कि वो कुछ नहीं सुनेगा. इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में है. इंग्लिश में कह सकते हैं He is too furious to listen to anything. To plus an adjective plus to plus a verb. यानी कोई किसी ऐसी अवस्था में है, ऐसी स्टेट में है कि इस काम को नहीं कर सकता है. यहाँ पर है He is too furious to listen to anything. Let's take another example. आप इतने छोटे हो कि गाड़ी नहीं चला सकते. You are too young to drive. You are too young to drive. More examples can be made. You will be more likely to remember what you learn if you make more and more examples of that. She is too beautiful to be rejected. वो इतनी beautiful है कि वो reject ही नहीं हो सकती है. This room is too small to be used for my cabin. कि ये रूम कुछ ज़्यादा ही छोटा है कि इसको मेरे कैबिन की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. He is too smart to fall for this. मतलब वो इतना स्मार्ट है कि इस चीज़ को तो वो मानेगा ही नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा इस चीज़ में. He is too smart to fall for this. He is too weak to defeat me. वो इतना वीक है कि मुझे डिफीट नहीं कर सकता है. मुझे लगा कि मुझ पे से बोझ उतर गया हो. इंग्लिश में कह सकते हैं I felt a weight lifted off me. I felt a weight lifted off me. बिल भर के मेरे कंधों पे से बोझ सा उतर गया. Paying the bill was a weight off my shoulders. Paying the bill was a weight off my shoulders. किसी बेवकूफ़ ने यहाँ कूड़ा डाल दिया. इंग्लिश में कह सकते हैं Some imbecile dumped his garbage here. Some imbecile. जी हाँ फ्रेंड्स, किसी बेवकूफ़ को हम इंग्लिश में imbecile भी कह सकते हैं. तो इस वर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कभी stupid, foolish या fool कहना हो. Some imbecile dumped his garbage here. मेरा ही क्यों बेवकूफ़ों से सामना हो जाता है, मुझे क्यों बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं. Why the hell do I come across imbeciles? Why the hell do I come across imbeciles? Why the hell? इस hell का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और ये इनफॉर्मल होता है. हेल के ऊपर वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है. उस वीडियो में मैंने बताया था कि हेल का यूज़ करके हम किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं. उस वीडियो को आप ज़रूर देखना. उसकी हिम्मत कभी डगमगाती नहीं है. इंग्लिश में कह सकते हैं His courage never falters. His courage never falters. If something falters, it becomes weak. इसका यूज़ हम बोलने और चलने के लिए भी कर सकते हैं. अगर कोई बोल रहा है रुक रुक कर, डगमगा कर बोल रहा है, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई चल रहा है रुक रुक कर, चलते वक्त लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहा है, तब भी हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं.
इंग्लिश में बात करते हुए वो अटकने लग जाता है। He begins faltering while speaking in English. He begins faltering while speaking in English. Of course, faltering की जगह पे आप stumbling भी कह सकते हैं। He begins stumbling या फिर he begins fumbling या फिर he becomes floundering while speaking in English. इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। इंग्लिश में हमारे पास एक सेइंग, एक इडियम होता है जो इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए बेस्ट है। To err is human. To err is human. It means it's normal for any human, it's natural for any human to make mistakes. It's not a big deal. err. It's a verb. It means to make a mistake. So to err is human. मतलब गलतियाँ करना तो human होता है। मतलब ये तो इंसान की फितरत है। इसको कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, माफ़ कर दो उसे, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। Forgive him. To err is human. To forgive divine. To err is human. To forgive divine. इंग्लिश में से कहते हैं To err is human. To forgive divine. ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब है कि माफ़ करने वाला तो भगवान जैसा होता है, बड़ा होता है, गलतियाँ तो सबसे हो ही जाती है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं whenever someone makes a mistake and you're willing to forgive him. बाहर मत जाओ नहीं तो तुम्हें लू लग जाएगी। फ्रेंड्स, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो आपको पता ही है कि जब गर्मी होती है तो अक्सर क्या होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहता है तो उसे लू लग जाती है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सनस्ट्रोक कहते हैं। डोंट गो आउट और यू विल गेट सनस्ट्रोक। डोंट गो आउट और यू विल गेट सनस्ट्रोक। हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं। उसे लू लगी हुई है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सनस्ट्रोक। He is suffering from sunstroke, just like I am suffering from. Do you remember कि हम स्कूल टाइम में sick leave जब लिखते थे तो कहते थे I'm sorry sir, I can't come to school. I have been suffering from fever for the last 2 days since the last night. कुछ इस तरह से। I think you remember. Suffer from something यानी उस चीज़ से होकर गुजरना, उस चीज़ को सहना। He is suffering from sunstroke. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।